Hello everyone, welcome to another class. And in today's class, I'm going to talk about a very important topic from Unit 2, an entrepreneur, and the topic is motivation. This is class number 7, and on this topic, this is third class in continuation. The first class was entrepreneurial values, which was part 1. Second was part 2, which was on attitudes. And third is motivation. And in today's class, I'm going to talk about motivation, where I'm going to talk about the term motivation, its value for an entrepreneur, Maslow hierarchy of needs, and McClelland theory of needs. So it's going to be a very important class, and believe me on this, that surely you are going to find out a question in examination from this class. So let's start today's class, and these are the points under discussion. आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर. आज हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन पर, मोटिवेशन थ्योरीज पर बात करेंगे, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पर बात करेंगे, और मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स पर बात करेंगे. So let's start with point number 1, that what is motivation? See, entrepreneurial motivation may be defined as the process that activates the entrepreneurs to exert a high level of effort for the achievement of his or her goal. Now, this is something very important for you to understand. You would have seen certain students, those who score very good marks, certain people, they start their venture, and within no time वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. And there is a reason behind it, and the reason is that they use their motivation. So motivation is a process, and the word motivation is inherited from the word motive, and motive means goal. If a person is having a goal, a motive, that I have to do a specific task to achieve something in life, and willfully he is every day checking that motive, that goal, but obvious it is for sure that person is going to get successful. Similarly, this motivation works for entrepreneurs. This motivation works for people, those who are desirous for success. It works for students. It works for anybody who wants to achieve their goal. So entrepreneurial motivation is defined as, or may be defined as, the process that activates the entrepreneurs to exert कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा इस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की. A high level of effort for the achievement of his or her goals. In other words, the entrepreneurial motivation refers to the drive or forces within an entrepreneur that affects his or her direction. अब बच्चों, जो entrepreneur की मोटिवेशन है, वो एक तरीके की ड्राइविंग फोर्स होती है जो उनकी डायरेक्शन को सेट करती है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑन्टरप्रेन्योर ने एक प्रोडक्ट बनाना है, एक ऑन्टरप्रेन्योर ने एक सर्विस बनानी है, तो दैट प्रोसेस इज नॉट इजी, दैट्स टफ. एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट राइटली डायरेक्टेड, इफ इज डेविएटेड, इफ इज डिस्ट्रैक्टेड, वो कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा. So in other words, the entrepreneurial motivation refers to the drive or forces within an entrepreneur that affects his or her direction. तो उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करती है वो ड्राइविंग फोर्स जो अंदर होती है कि भैया कुछ अचीव जरूर करना है लाइफ के अंदर. अच्छा, डायरेक्शन उन्हें प्रोवाइड करती है, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और persistence, which is determination. Come what may be the challenges and circumstances are, I am going to achieve my goal for sure. And if I'm unable to achieve my goal, that is not that. That is the beginning. So मुझे अपने goals को achieve करना है. And that is the word motive, what it stands for. Of voluntary behavior. इस behavior का cause ही ये है कि वो directed होते हैं, उनकी inner strength बढ़ती है, और वो determined रहते हैं.
कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, एंड दैट इज व्हाट द मोटिवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज. Third point, motivation is essentially a process. It can be well expressed in the form of a model, जो मैंने next slide में आपके साथ लिया है. On a careful analysis of the model, it can be understood that every individual possesses an urge or a need or a multitude of needs, desires or expectations. जब इस मॉडल को, जो मोटिवेशन का मॉडल है, इसे प्रॉपरली एनालाइज किया गया तो पता ये चला कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक अर्ज है, एक डिजायर है, नीड है और मल्टीट्यूड ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर. एनालिसिस करके पता चला कि ये चीजें हर किसी व्यक्ति में होती है, किसी में डोरमेंट होती है और किसी में दे आर लेस डोरमेंट. Fifth point, the unsatisfied needs leads to tension within the individual and motivates one to search for ways to relieve one's own tension. अब बच्चों, डिजायर सबके पास, किसी की फुलफिल हो जाती है और किसी की फुलफिल नहीं हो पाती. देखिए, आप कोई भी डिजायर फुलफिल करने निकलेंगे, कोई भी गोल अचीव करने निकलेंगे, हमेशा आपको एक चीज तो कॉमनली मिलेगी रास्ते में, और वो है डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स. ये तो फॉर श्योर आपको मिलेंगे. कुछ लोग हैं वो इसे स्टेपिंग स्टोन लेते हैं आगे बढ़ने का, और कुछ लोग इसे गिव अप करने का एक एक्सक्यूज लेते हैं. तो द अनसेटिस्फाइड नीड्स लीड टू टेंशन. जो नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती, वो एंटरप्रेन्योर को या वो उस व्यक्ति को टेंशन देती हैं कि भैया तू ये चीज अचीव नहीं कर पाया है एंड यू हैव मिस समथिंग इन लाइफ. नेक्स्ट, 6 point, that tension leads to one leads one to certain drives and searching alternatives to achieve one's goal, which will eventually reduce tension. फिर ये टेंशन ही सबब बनती है गोल को अचीव करने का. यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैं गोल अचीव नहीं कर पाया, क्या रहा, where I went wrong, I have to work on that, I have to search that. और फिर ये टेंशन ही एक तरीका बनता है उस गोल को अचीव करने का. I'll read the point again. The tension leads one to certain drives यहाँ पे determinations है, and searching alternatives to achieve one's goal, which will eventually reduce tension. तो टेंशन होने से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत रहे, और इस टेंशन की वजह से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. अब बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द फर्स्ट वन इज अनसेटिस्फाइड नीड्स. आपकी नीड्स अनसेटिस्फाइड है, इट लीड्स टू टेंशन. देन टेंशन लीड्स टू ड्राइव्स. दैट मीन्स डिटर्मिनेशन. भैया सब अचीव कर रहे हैं, मेरे से कहां गलती रह गई, वेयर आई वेंट रॉन्ग. ड्राइव्स helps the person to search a behavior. फिर वो बिहेवियर उस नीड को सेटिस्फाई करवाता है, एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन. एंड देन अगेन नेक्स्ट नीड, नेक्स्ट टेंशन, नेक्स्ट ड्राइव, नेक्स्ट बिहेवियर, देन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस साइकिल. ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा 10th में टॉप कर गया, सीबीएसई टॉपर बन गया, तो 11th में नहीं आना चाहेगा. तो 11th में सेम प्रोसेस चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने 1 साल बिजनेस किया, बहुत सक्सेस कमा ली. वो ये तो नहीं कहेंगे ना नेक्स्ट ईयर मैंने सक्सेस नहीं कमाना. तो नेक्स्ट ईयर सेम प्रोसेस चलेगी. अनसेटिस्फाइड नीड्स, टेंशंस, ड्राइव्स. फिर ड्राइव्स विल हेल्प, डिटर्मिनेशन विल हेल्प the person to search a behavior that will help the person to satisfy the needs, reduction of tension, and then again it got started.
इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। और बच्चों, होप सो कि आपको एग्जामिनेशन में इसके ऊपर 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 2 to 3 मार्क्स का। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट यू हैव टू वर्क ऑन। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरीज की, और यहां पर हम लेंगे सबसे पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो इट्स अ वेरी फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स, आपने पहले भी पढ़ी होगी। पर अब आप ये देखिए कि 11th में आपको स्पेसिफिकली सीबीएसई के सिलेबस में डाल के मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ाई जा रही है और मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ाई जा रही है। इसका पर्पस ये है कि आप इसको समझ जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड टू बिकम सक्सेसफुल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पिरामिड के टॉप पे है, उसे अचीव करने के लिए आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। So let's start, Maslow's hierarchy of needs or Maslow hierarchy of needs. First point, there have been various theories of motivation which encourages an entrepreneur to continue his or her work despite all odds. तो बच्चों, बहुत सारी थ्योरीज है मोटिवेशन की जो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करती हैं कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस उनकी लाइफ में आती रहे। नाउ दैट इज व्हाट मोटिवेशन स्टैंड्स फॉर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये पिरामिड है विच इज क्रिएटेड बाय मैस्लो, और इसमें जो पहली नीड है उस पर भी हम बात करेंगे और पांचवी नीड पर भी बात करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये फर्स्ट नीड है दैट इज फिजियोलॉजिकल, सेकेंड नीड है दैट इज सेफ्टी नीड्स, belongingness and love needs, fourth is esteem need, and fifth is self actualization। जो पहली दो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, दे आर द बेसिक नीड्स। फिर आपकी बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड एस्टीम नीड्स आर साइकोलॉजिकल नीड्स। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले, कि जब तक आपकी एक नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, आप दूसरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। पहली दो सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप तीसरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। पहली तीन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, आप चौथी की तरफ नहीं बढ़ सकते। पहली चार सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। You will surely get a question from this in the examination. Acha, let's take up the pointers. This theory was proposed by Abraham Maslow and assumes that people are motivated by a series of 5 universal needs or 5 stages of growth. These needs are ranked according to the order in which they influence human behavior and hierarchical fashion. तो इन नीड्स को स्पेसिफिकली इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स को ये नीड्स इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान। भैया ये जब तक पूरे नहीं होंगे तो इंसान सेफ्टी के बारे में कैसे सोचेगा? तो सबसे पहली नीड जो मैस्लो ने क्रिएट की या ऑब्जर्व की सोसाइटी की एक्टिविटीज से, वो यही थी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। तो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स आर डीम्ड टू बी द लोएस्ट लेवल नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड द नीड्स सच एज फूड एंड वाटर। फूड, वाटर, क्लोथिंग, ये चीजें बेसिक है, ये लोएस्ट लेवल पे है। ये होगा तो कुछ दूसरा कुछ होगा, ये नहीं होगा तो एक इंसान सारी जिंदगी इसी के चक्कर में लगा रहे। इफ योर बेसिक नीड्स लाइक हंगर, खाने से रिलेटेड है, आर नॉट मेट, दे पुश यू टू डू समथिंग अबाउट इट। तो आपको करना पड़ेगा, खाना तो चाहिए ना सबको रोज।
और दिन में 2 वक्त चाहिए, 3 वक्त भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर हंग्री, यू फील द नीड टू ईट. दिस फीलिंग क्रिएट्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल टेंशन. आपको भूख लगी है, खाना आपके पास है नहीं, तो फिजिकल टेंशन भी है और मेंटल टेंशन भी. वंस यू ईट एंड योर हंगर इज गॉन, एक बार आपने खाना खा लिया, आपका हंगर चला गया, द टेंशन इज रिड्यूस, द टेंशन इज लेसन, एंड यू नो लॉन्गर फील द नीड फॉर फूड. एक नीड पूरी होगी, वो सेटिस्फाइड होगी, तो आप दूसरी नीड की तरफ बढ़ेंगे. वो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो आप दूसरी नीड की तरफ जा नहीं सकते. इफ योर बेसिक नीड्स आर ऑल्सो मेट, देन यू माइट स्टार्ट फोकसिंग ऑन हायर लेवल नीड्स. और बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को एग्जामिनेशन में जाते हैं भूल, और अपने मार्क्स को आप कटवा लेते हैं. ये पॉइंट, ये यूवीपी है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, और ये आपका वीआईपी पॉइंट है, वीआईपी. नेक्स्ट, सेफ्टी नीड. एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो अब चलो भैया अपने आप को सेफ भी कर लेते हैं. अच्छा, द नीड फॉर शेल्टर एंड सिक्योरिटी. घर बना ले, अच्छा सा, अच्छी जॉब कर ले, जॉब में सिक्योर हो जाए ताकि हर महीने पैसा आ सके. सिक्योरिटी हो गई, सेफ्टी हो गई. becomes the motivators of human behavior. Safety needs means wanting to feel safe, stable, and protected. Safe, stable, and protected. This includes being free from fear and worries. आपकी जॉब पक्की है, हर महीने आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपका वरी फैक्टर कम हो गया. In a job, this translates to wanting some assurance that you won't lose your job. आपको एक एश्योरेंस मिल जाता है कि भैया अब आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप रेगुलरली इसमें काम कर सकते हैं, आपको रेगुलर पैसा आता रहेगा. तो आपकी दो नीड्स मेट हो गई, एक तो फिजियोलॉजिकल और एक सेफ्टी नीड. अब आप सेफ suddenly, and that it will work well. You can keep your job. It's about having a sense of security and knowing that there are rules and order in place, and you can have a good life on the basis of your job and its safety. ये हो गया. अब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई और सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई. अब चलते हैं तीसरी नीड की तरफ, जिसे कहते हैं सोशल नीड्स. इंक्लूड द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड लव. अब आप समाज की तरफ बढ़ते हैं, समाज में अपना नेटवर्क बनाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, and you will reach to the third stage, that is social needs. People naturally want to be the part of a group. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है. पर एक व्यक्ति जिसकी नीड्स ही मेट नहीं हुई, वो क्या नेटवर्क बनाएगा और क्या किसी ग्रुप का पार्ट बनेगा. तो जो लोग, आप देखिए सोसाइटी में एलूफ रहते हैं, कम नेटवर्क बनाते हैं, ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाते हैं, किसी हद तक उनकी ये दो नीड्स प्रॉपरली मेट नहीं हो पाती या नहीं हो पाई है. People naturally want to be the part of a group. At work, this means being able to talk and work together with colleagues. लोगों से बात करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, आप लोगों को एक्सेप्ट करें. Once you have made these social connections, you might start caring more about your own importance and how others see you. एक बार ये हो जाएगा तो फिर आप अपनी सोशल इंपॉर्टेंस पर काम करना शुरू कर देंगे. आप अच्छा ड्रेसअप होगे, आप चाहेंगे लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको लाइक करें, एंड इट गोज हैंड इन हैंड. दैट्स व्हेन ईगो एंड एस्टीम नीड्स बिकम इम्पोर्टेंट. उसके बाद आपकी ईगो और एस्टीम नीड्स पॉलिश होती है, एंड यू एंटर इनटू द थर्ड स्टेज. तो जो लोग समाज में आपको इस प्रकार से नजर आते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, बिलीव बहुत ज्यादा है, एंड दे आर लाइकिंग देमसेल्व्स, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय अदर्स, आप ये मान के चलिए कि उनकी दो नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तब वो इस स्टेज पर आए. अच्छा, अब हम फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, विच इज एस्टीम नीड्स. People want to feel good about themselves and be respected by others. This includes wanting to have a good opinion of yourself, wanting others to see you positively, and desiring things like good reputation, recognition, and attention.
इट इज अबाउट फीलिंग इंपॉर्टेंट एंड अप्रिशिएटेड बाय द पीपल अराउंड यू। और बच्चों, आप जिसे भी देखते हैं ना समाज में, जो कॉन्फिडेंटली बात करता है, फटाफट से अपने एक्शंस ले लेता है, ज्यादा उन्हें सोचना नहीं पड़ता, वो इस 4 स्टेज पर आ गए हैं, वेयर दे हैव गॉट गुड रेपुटेशन, recognition, attention from society, and feeling of importance in society, and they achieve self belief and self confidence. और इसके बाद कहीं जाके ना आप अपने सपने पूरे कर पाते हैं, जिसके लिए आपने जर्नी स्टार्ट की थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन is the highest need in Maslow's hierarchy. The need for self-realization, continuous self-development, and the process of becoming all that a person is capable of. तो आप फिर वो बन पाते हैं जो आप एक्चुअली केपेबल होते हैं बनने के, और जिसके बेसिस पर आपने जर्नी स्टार्ट की होती है। मैं एक बार फिर से आपको पिरामिड की तरफ लेके चलता हूं। देखिए बच्चों, ऐसा है कि पहले किसी भी इंसान को इस संसार में आगे बढ़ने के लिए फूड, वाटर, रेस्ट, वार्म, ये सब चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद सिक्योरिटी, सेफ्टी फ्रॉम सराउंडिंग, घर, जॉब, रेगुलर पैसा उसको चाहिए। उसके बाद वो समाज की तरफ अट्रैक्ट होता है, सामाजिक बनता है, लव नीड्स पूरी करता है, बिलोंगिंगनेस आती है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो लोगों को पसंद करता है। इन तीनों स्टेजेस के बाद उसकी सेल्फ एस्टीम पॉलिश हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब ये चारों स्टेजेस पूरी हो जाती है तो फिर वो अचीव कर लेता है जो वो सच में कभी जिंदगी में अचीव करने के लिए घर से निकला था या अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। यहाँ पर उसका पूरा पोटेंशियल पॉलिश होता है, एंड ही बिकम्स एन अचीवर। तो आप समाज में जिन लोगों को अचीवर्स देखते हैं, वो कभी फिजियोलॉजिकल नीड से निकले, फिर सेफ्टी नीड्स पर आए, फिर वो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स पर आए, फिर एस्टीम नीड्स पर आए, और फिर जाके उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव किया। जरा से एक स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर दूं बच्चों, सेफ्टी नीड्स है और सेफली नीड्स। तो ये बेसिक नीड्स है जो आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स है, और बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स एंड एस्टीम नीड्स ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है। और जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स है, कि भैया मैंने सब सारी स्टेजेस पूरी कर ली है, एंड नाउ आई एम ऑन माई फुल पोटेंशियल, अपने पूरे गोल्स अचीव कर सकता हूं, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। तो जो लोग भी समाज में अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले इन स्टेजेस पर काम किया है। तो बच्चों, ग्रोथ भी ना लाइफ में इसी प्रकार से आती है, स्टेप बाय स्टेप। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लिंक कर पाएंगे इसको। जो ग्रोथ है लाइफ में वो आती है स्टेप बाय स्टेप, वो एकदम से नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप आती। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज McClelland theory of needs. According to David McClelland, regardless of culture or gender, people are driven by three motives. बच्चों, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हो, लोगों को यही तीन चीजें मूव करती है लाइफ में। और ये तीन चीजें हैं अचीवमेंट, एफिलिएशन, एसोसिएशन एंड पावर, दैट इज AAF. Since McClelland's first experiments, over 1,000 studies relevant to achievement motivation has been conducted. These studies strongly supported the theory. तो बच्चों, उनकी 1,000 स्टडीज जो अचीवमेंट मोटिवेशन पे की गई थी, उन्होंने इस स्पेसिफिक स्टडी को सपोर्ट किया, विच इज आप किसी भी कल्चर के हो, किसी भी आप सोसाइटी के हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको ये तीन चीजें चाहिए, दैट इज अचीवमेंट, एसोसिएशन दैट इज एफिलिएशन एंड पावर। अब थोड़ा सा पर हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। द फर्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट। व्हाट इट मीन्स, wanting to solve problems, handle difficult tasks,
सेट गोल्स एंड नो हाउ वेल यू आर डूइंग। तो बच्चों अचीवमेंट आप अचीव कब करते हैं लाइफ में? जब आप ये कुछ काम कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, आप डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, आप गोल्स को सेट कर पाते हैं, एंड यू नो यू आर डूइंग प्रिटी वेल। इसके एग्जाम्पल है एंजॉइंग टेकिंग चार्ज, मास्टरिंग चैलेंजेस एंड गेटिंग फीडबैक ऑन योर सक्सेस। तो जो लोग चार्ज लेना पसंद करते हैं काम का, जो चैलेंजेस को मास्टर कर चुके हैं, उन्हें चैलेंजेस से डर नहीं लगता, and they love taking feedback on their success, are the one those who have achieved something in their life। तो उनके तीन ट्रेड्स हैं। वो एक तो अपने काम का चार्ज लेंगे, डरेंगे नहीं, काम दे दो, अरे मैं कर दूंगा यार, मैं कर दूंगा काम, अब काम दे दो मुझे। उन्हें पता है काम करूंगा, चैलेंजेस आएंगे, वो भी मुझे आता है, मैं मास्टर हूँ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में, उन्हें ओवरकम करने में, एंड गेटिंग फीडबैक ऑन योर सक्सेस। और गलती करते तो अपनी इस काम के ऊपर फीडबैक लेना उन्हें पसंद है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव। अब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इस चीज। एफिलिएशन, अब एसोसिएशन कैसे बनता है? व्हाट इट मींस, वांटिंग टू बिलोंग, enjoying working with others, caring about relationships and reducing uncertainty। तो जो एफिलिएशन ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो ग्रुप का पार्ट बन के रहना चाहते हैं, दे इंजॉय वर्किंग। अगर आप वर्क एंजॉय नहीं करोगे तो आप ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकते। विद अदर्स, एंजॉय वर्किंग विद अदर्स, तो वो एसोसिएशन ओरिएंटेड, एफिलिएशन ओरिएंटेड लोग बन जाते हैं। केयरिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, और वो रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाती। कौन? वो लोग जो एसोसिएशन पर काम करते हैं। एग्जाम्पल्स, फीलिंग गुड व्हेन पार्ट ऑफ अ टीम, वैल्यूइंग फ्रेंडशिप एंड मेकिंग कनेक्शंस विद पीपल। तो उन्हें अच्छा लगता है, दे फील गुड व्हेन दे आर द पार्ट ऑफ अ टीम। दे वैल्यू फ्रेंडशिप, उन्हें अच्छा लगता है व्हेन पीपल आर क्लोज टू देम, वो लोगों की इज्जत करते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, एंड दे लाइक मेकिंग कनेक्शंस विद पीपल। तो पहले अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गए, फिर एसोसिएशन ओरिएंटेड हो गए, और थर्ड है पावर ओरिएंटेड। व्हाट इट मींस, वांटिंग टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, बट अपनी काबिलियत के बेस पे। एंजॉइंग विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, उन्हें अच्छा लगता है अगर कोई उनके साथ आर्ग्यू करे, बहस करे, और वो उन आर्ग्यूमेंट्स को जीत जाए। एंड हैविंग द नीड्स टू परसुएड एंड प्रिवेल, और वो लोगों को अपने व्यू पॉइंट से कन्विंस कर लेते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये पावर ओरिएंटेड लोग होते हैं। एग्जाम्पल, किसी काम का चार्ज लेना, लाइकिंग टू बी इन कंट्रोल, और वो है जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, एंड बीइंग परसुएसिव इन डिस्कशन। परसुएसिव का मतलब है दे कन्विंस पीपल, विच इज कॉल्ड रियलिटी डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो बच्चों तीन प्रकार से लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, या तो अचीवमेंट्स के साथ, या फिर एसोसिएशन एफिलिएशन के साथ, और या फिर पावर के साथ। According to McClelland, when a person has strong desires or drives for things like achievement, affiliation, or power, it shows a tendency to act in a specific way। तो बच्चों जब कोई भी व्यक्ति अचीवमेंट चाहेगा, एफिलिएशन चाहेगा और पावर चाहेगा, उसका जो काम करने का ढंग है, तरीका है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। इट शोज अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वेज, वो अलग तरीके से अप्रोच करेगा काम। सो फॉर अ मैनेजर, understanding which needs is most important for each person helps in motivating them in a way that suits them the best। तो एक मैनेजर कैसे काम करता है, वो लोगों को पहचानता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि किस व्यक्ति को मैं कौन सा काम दूं तो वो इसे बेस्ट कर सकता है। तो कलेक्टिवली अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 5 काम है, मैंने दो दो का ग्रुप बना दिए, 5 ग्रुप बना दिया और सबको उनका फेवरेट काम दे दिया है, तो बट ऑब्वियस है मेरी टीम आगे ग्रो कर जाएगी।
और अगर वो कोई ऐसे हैफजर्डी काम, कोई भी काम किसी को दे दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेस। और इस प्रकार से मैनेजर्स भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज फॉर अ मैनेजर अंडरस्टैंडिंग विच नीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच पर्सन। क्या वो ये अचीवमेंट ओरिएंटेड है, एफिलिएशन ओरिएंटेड है, या पावर ओरिएंटेड है, तो उसी जिस जैसी उसकी नेचर है उस प्रकार के काम उसको देने चाहिए। People with achievement motives are motivated by standards of excellence. जो लोग अचीवमेंट को अपना मोटिव बना के चलते हैं वो हमेशा इनकरेज होते हैं बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। बढ़िया सा काम, बड़ा काम हो, बढ़िया सा काम हो, उसमें कुछ रूल्स हो, नॉर्म्स हो, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो दे लव डूइंग दैट वर्क। डिलीनिएटेड रोल्स, डिफाइंड रोल्स हो सबके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंक्रीट टाइमली फीडबैक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और टाइमली फीडबैक्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए जो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। दोज विद एफिलिएशन, एसोसिएशन और कनेक्शन ओरिएंटेड motives are motivated when they can accomplish things with people they know and trust। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टीम्स में काम करना अच्छा लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि एफिलिएशन ओरिएंटेड है और ये लोगों के साथ ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, एंड दे कैन accomplish more with teams and people। And the last one is power oriented. So, and the power motive is activated when people are allowed to have an impact। उन्हें कंट्रोल सौंप दिया जाता है ताकि वो इम्पैक्ट डाल सके। इम्प्रेस दोज इन पावर, तो काम इस प्रकार से करेंगे कि जो ऊपर पावरफुल लोग हैं वो उनके काम को पसंद करें। एंड दे वर्क विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्लिप्सिंग देयर कॉम्पिटिटर्स, तो वो कॉम्पिटिटर्स को एक्लिप्स करने में कंपनीज की मदद करते हैं। तो एक कंपनी के अंदर देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है। या तो अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, या वो एसोसिएशन के लिए काम करेंगे, या वो पावर के लिए काम करेंगे। तो हमें पहचानना ये है कि किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन इज हैविंग विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजायर टू वर्क, इधर अचीवमेंट, एसोसिएशन और पावर। सो मैक्लिनेट ने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने 3 मोटिव्स बताए, मैस्लोज ने 5 स्टेजेस बताई, स्टेप्स बताए टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन लाइफ। और बच्चों इन्हें कहा गया है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। व्हाई? व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थ्योरीज, you understand that what is the reason people are successful, what is the reason people behave in certain ways, what is the reason that you are behaving in a different way। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हमने अभी तक ये पहचाना ही ना हो कि व्हाई पीपल आर सेफ, बिकॉज उनकी पहली नीड मेट हो चुकी है। व्हाई पीपल आर आस्किंग फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, क्योंकि उनकी 2 नीड्स पूरी हो चुकी है। क्यों लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है? बिकॉज उनकी तीनों नीड्स पूरी हो चुकी। So these theory of motivations are very important, and don't miss them, because they are inseparable part of examinations, question asking, and gaining marks. So much with this, we have come to the end of today's class, where we have taken these 5 points: motivation, the process of motivation, motivation theories, Maslow hierarchy of needs, and McClelland theory of needs. And please do not forget to take up this rigorous practice section. Check your progress with this. You can call it also, checking your progress. This is our UVP, unique value proposition। और आप इसके बेसिस पर व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द क्लास आप चेक कर सकते हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम द क्लास इन इंग्लिश एंड हिंदी, short questions and answers, 10 questions with answers, synopsis of the class, objective type 10 questions with answers, and true and false statements with answers। So बच्चों, this is all for today's class. Thank you very much for being here, and thank you very much for appreciating our work that we have been doing specifically for the students of entrepreneurship. We are going to
expedite the process of taking classes. But every time we take a class, हम आपको क्लास के सिनॉप्सिस से ही पढ़ा सकते हैं, पर हम ये मानते हैं कि success lies in details. So that's why we take detail oriented classes every time. So soon we are going to start with uh, short classes where we are going to cover up the whole unit in 2 hours, and you are going to take a complete overview of the unit in those 2 hours. Soon we are going to start, and until then, keep watching, keep liking our work, and keep telling it to your friends that free classes on entrepreneurship are going on YouTube, and you can please watch those classes, and these are specifically meant for grade 11th and 12th. So much until we meet next time. Bye bye for now. God bless you and take care.